یہ کتے پالنے کی کون سی ہابی ہے؟ کیا اس گھر میں انسانوں سے زیادہ جانوروں کو ترجیح دی جاتی ہے؟ پلوشا نے ایک بہت بڑا چیزی برگر اپنے منہ میں ٹھوستے ہوئے انتہائی لاپرواہی اور اکتاہٹ بھرے لہجے میں سوال داغا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سامنے بندے ہوئے خوفناک جانور پر جمی تھی، جو اسے دیکھ کر مسلسل غرا رہا تھا اور زنجیر تروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لان میں شام کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر وہاج کا پارا اس لڑکی کی فضول گوئی سن کر چڑھ گیا۔ اسے اپنے کلائی پر بندی مہنگی رولیکس گھڑی کو درست کرتے اسے ایک سرد اور تیز نظر سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں اتنی گہری تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر سہم جائے۔ یہ کتا نہیں، جرمن شیفرڈ ہے، اور اس کی قیمت اور وفاداری تم جیسی لاپرواہ لڑکیوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ فہاج کی آواز میں ایسی کاٹ اور تحقیر تھی کہ پلوشا ایک لمحے کے لیے سہم سی، لیکن اس نے اپنی فطری شرارت اور لاپرواہی کو ڈھال بناتے فوراً سے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص بارود کا ڈھیر ہے، مگر اسے چھیڑنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اب شیفرڈ نام رکھ لو یا ٹائگر، کتا شیر بننے سے تو رہا، کتا کتا ہی رہے گا۔ ویسے بھی شکل سے تو یہ مجھے کسی بگڑے ہوئے بیڑیے کا کزن لگتا ہے۔ پلواشا نے کندھے اچکاتے اپنی ہی عجیب و غریب منطق پیش کی۔ اس کے لہجے میں ایسی معصومیت اور جہالت کا امتزاج تھا جو وہاج کے ضبط کو توڑنے اور غصے کی کو مزید ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ چند قدم چلتا اس کے انتہائی قریب آیا۔ اس کا 6 فٹ کا قد، کسرتی بدن اور روبدار شخصیت ایسی تھی کہ پلواشا کو اپنی گردن اوپر اٹھا کر سے دیکھنا پڑا۔ وہاج کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اگر تم نے اپنی یہ فضول بکواس ابھی بند نہ کی اور میرے شیفرڈ کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہیں اسی کے پنجرے میں بند کر دوں گا۔ پھر شوق سے اس کا شجرہ نصب معلوم کرتی رہنا۔ وہاج نے دھیمی لیکن انتہائی خطرناک سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں دھمکی نہیں، یقین تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ پلوشا کے حلق میں نوالا بری طرح اٹک گیا۔ اس کا منہ پھولے کا پھولا رہ گیا اور برگر کا پیس وہیں جم گیا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ کس غلط شخص سے الجھ رہی ہے۔ گیٹ لاسٹ۔ وہاج کی دہاڑ اتنی اچانک اور بلند تھی کہ پورے لان میں گونج گئی۔ پلوشا کے ہاتھ سے برگر گرتے گرتے بچا۔ وہ خوف کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی اور وہاں سے 200 کی سپیڈ سے بھاگی، جسے زندگی اور موت کا مزہ ہو۔ وہ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ وہاج اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا اور ایک گہرا تھکا ہوا سانس خارج کیا۔ کس مصیبت کو لے آیا ہوں میں اس گھر میں؟ دادا جان نے بھی کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ خود کلامی کرتے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اس لڑکی کو اپنے مینشن لانا، اپنی پرائیویسی اور سکون کو برباد کرنا اس کی زندگی کا اب تک کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ وعدے اور خون کے رشتے اسے جگڑے ہوئے تھے۔ پلوشا کی زندگی کبھی ایسی بے ترتیب اور خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ ایک نازو پلی شہزادی تھی۔ اس کی والدین ایک کار حادثے میں اس وقت اللہ کو پیارے ہو گئے تھے جب وہ محض 5 سال کی تھی۔ تب سے اس کے دادا جہانگیر صاحب ہی اس کی کل کائنات تھے۔ وہ ایک بڑے بزنس تائکون تھے اور انہوں نے پلوشا کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر پالا تھا۔ اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی سوائے خونی رشتوں کے۔ لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ خوشیوں کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی۔ 2 ہفتے پہلے کی وہ رات پلوشا کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ شہر کا سب سے بڑا پرائیویٹ ہسپتال، ادویات کی مخصوص بو اور وینٹیلیٹر کی پیپ کی آوازیں، یہ سب اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ جہانگیر صاحب ہسپتال کے بستر پر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ دل کا شدید دورہ ان کے کمزور وجود کو توڑ چکا تھا۔ ان کا کانپتا ہوا ہاتھ ان کے بچپن کے جگری دوست، بزنس پارٹنر اور وہاج کے دادا شاہ نواز صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ نواز، میرے یار، میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ جہانگیر صاحب کی آواز ٹوٹ گئی، الفاظ بکھر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنی جوان پوتی کے مستقبل کا خوف واضح تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد پلوشا کا کیا حال ہوگا۔ تم جانتے ہو، پلوشا کا سگا ماموں لیاقت وہ انسان نہیں بھیڑیا ہے۔ وہ میری جائیداد کے پیچھے پاگل ہے۔ وہ میری معصوم بچی کو مار دے گا۔ شاہ نواز، اسے بچا لینا۔ شاہ نواز صاحب کی بوڑھی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ دوستی کا یہ رشتہ 60 سال پرانا تھا۔ انہوں نے مضبوطی سے اپنے دوست کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم فکر مت کرو جہانگیر، تم سکون سے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں پلوشا اب سے میری ذمہ داری ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، میری پوتی ہے۔ وہاج، میرا پوتا، وہاج اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ دیوار بن کر کھڑا ہوگا اس کے آگے۔ جہانگیر صاحب نے پلوشا کا کانپتا ہوا ہاتھ وہاج کے دادا کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ پاس ہی کھڑی آنسوں کی برسات میں بھیگ رہی تھی۔ اس منظر نے اس کی روح کو گائل کر دیا تھا۔ بیٹا، دادا جان کے پاس آؤ، جہانگیر صاحب نے آخری بار سے پکارا۔
पलवशा अपने दादा के सीने से लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कमरे में मौजूद हर आंख अश्कबार थी, जबकि वहाज के दादा उसे दिलासा देते खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसी शाम सूरज गुरूब होने के साथ ही जहांगीर साहब अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर गए। पलवशा दुनिया में अकेली रह गई थी। उसका वाहिद सहारा शाहनवाज साहब का वादा और उनका घर था। तदफीन और सोख की इब्तदाई अयाम गुजरने के बाद शाहनवाज साहब ने हतमई फैसला सुना दिया कि पलवशा अब अकेली अपने घर में नहीं रहेगी, बल्कि उनके साथ उनके शाह नवाज विला में शिफ्ट होगी। ये फैसला वहाज शाह के लिए किसी बम शेर से कम नहीं था। वहाज जो अपने असूलों का पक्का सख्त मिजाज और तन्हाई पसंद इंसान था, उसे अपनी जिंदगी में किसी की मुदाखलत गवारा नहीं थी। दादा जान, अब जानते हैं मुझे घर में शोर और अजनबी लोग पसंद नहीं है। हम इसकी हिफाजत के लिए गार्ड्स रख सकते हैं। इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? वहाज ने रात के खाने पर एहतजाज किया, मगर शाहनवाज का हुक्म अटल था। वो मेरी जिम्मेदारी है वहाज, और अब तुम्हारी भी। बहस खत्म। और यूं आज पलवशा का सामान शिफ्ट हो रहा था। मुलाजमीन बड़े बड़े बैग उठाकर अंदर ले जा रहे थे। शाहनवाज विला की शानो शौकत और दबदबा पलवशा के अपने घर से भी ज्यादा था, मगर उससे ये जगह किसी आलिशान जेल खाने जैसी लग रही थी। वो लाउंज के कोने में सोफे पर सिमटी बैठी थी। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी के गहरे साए थे। आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। वहां से ये उतरता उसके पास आया, ब्लैक पैंट कोट में मलबूस। वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था, मगर उसके तेवर किसी जालिम बादशाह से कम नहीं थे। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा तकब्बुर था जो पलवशा को जहर लगा। वो उसके सामने आकर रुका और जेब में हाथ डाले। देखो मिस पलवशा, मैं बातें घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं, इसलिए कान खोल कर सुन लो। उसका लहजा स्पार सर्द और सख्त था। पलवशा ने सर उठाकर उस अजनबी शख्स को देखा जिसके घर वो पनाह गजीन था। ये घर कोई सराय या पिकनिक स्पॉट नहीं था। यहाँ रहने के लिए कुछ असूल थे। सुबह का नाश्ता 8 बजे होता था और रात का खाना 9 बजे। मुझे घर में ऊंची आवाज, फजूल का शोर और ड्रामेबाजियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने काम से काम रखना और मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। मेरा सफर बहुत कम है, इसलिए इसे आजमाने की गलती मत करना। वहाज की वार्निंग में हमदर्दी, मेहमान नवाजी या रहम का कोई शैबा तक नहीं था। उसे बस अपने डिसिप्लिन की फिक्र थी। पलवशा ने नफरत और बेबस सी मिली आंखों से उसे देखा और मुंह फेर लिया। उसके दिल में जो दुख का तूफान था, हाज उससे बिल्कुल अनजान था। उस शख्स को सिर्फ अपने असूलों की पड़ी थी, जबकि वो अपना सब कुछ खो कर आई थी। मैं यहाँ अपने शौक से नहीं आई मिस्टर वहाज। मजबूरी इंसान को कहाँ कहाँ ले जाती है, ये आप जैसे पत्थर दिल लोग नहीं समझ सकते। पलवशा ने दबी आवाज में कहा और नजरें जगा कर जवाब दिया। वहाज ने एक लम्हे के लिए उसकी बात पर गौर किया, लेकिन फिर कंधे उचकाते वहां से चला गया। उसे जज्बाती बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी पलवशा को शिफ्ट हुए कुछ ही घंटे गुजरे थे कि कमरे के कदीम तर्ज के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। मुलाजमीन काम में मसरूफ थे और पलवशा करीब ही पानी पी रही थी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो पलवशा, तुम उस बुड्ढे शाहनवाज के घर में क्या कर रही हो? दूसरी तरफ से उसके मामू लियाकत की करख्त और गसीली गसीली भरी आवाज आई, और आवाज जिसे सुनकर पलवशा को हमेशा खौफ आता था। उसका रंग जैद पड़ गया। मामू आप? हाँ, मैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुप जाओगी? कान खोल कर सुन लड़की, सीधी तरह घर वापस आ जाओ, वरना मैं कोर्ट के जरिए तुम्हारी कस्टडी ले लूंगा। वो करोड़ों की जायदाद मेरे बाप की है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम उस शाहनवाज के घर में छुप कर उसे मुझसे बचा नहीं सकते। पलवशा के हाथ कांपने लगे। उसके मामू की लालच और जुल्म से वो वाकिफ थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, एक मजबूत और ताकतवर हाथ ने उससे फोन छीन लिया। वहां से अचानक कब उसके पीछे आकर दीवार की तरह खड़ा हो गया था। उसे पलवशा को आंखों के इशारे से पीछे हटने को कहा और रिसीवर कान से लगाया। सुनो लियाकत साहब, आज की आवाज में चट्टान जैसी सख्ती और समंदर जैसा सुकून था, जो तूफान का पेशे खैमा होता है। अगर तुमने इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी वो आंखें निकाल लूंगा। पलवशा अब शाहनवाज साहब की अमानत है और वहाज शाह की हिफाजत में है, और वहाज शाह की हिफाजत का हिसार तोड़ना तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ लियाकत साहब दांत पीस कर रह गए। वहाज का नाम, उसका असर रसूख और उसकी रोब पूरे शहर में मशहूर था। वो जानते थे कि वहाज जो कहता है वो करता है, मगर उसे हमेशा नहीं बचा सकोगे वहाज, वो मेरी भांजी है। लियाकत ने कस्यानी बिल्ली की तरह धमकी दी। वो तुम्हारी भांजी बात में है, पहले वो एक मजलूम लड़की है जिसे तुम जैसे घत लोचना चाहते हैं। दोबारा फोन मत करना,
वहाज ने हकारत से फोन पटक दिया। उसने मुड़कर पलवशा को देखा जो कि खौफजदा खड़ी थी, अपने हाथों को मसल रही थी। वहाज की आंखों का रंग अब भी बदला हुआ था। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में और आराम करो। वहाज भी हुक्म सादर कर खुद बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके अंदाज में एक अजीब सा तहफ्फुज था जिसने पलवशा को हैरान किया। लियाकत साहब ने दूसरी तरफ फोन बंद करते ही गुस्से में कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब कानूनी रास्ते से कुछ नहीं होगा। अब वो ताकत के जोर पर पलवशा को अगवा करके जायदाद अपने नाम करवाएंगे। अगली दोपहर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। मेंशन में अजीब सी खामोशी थी। वहां ऑफिस जा चुका था और शाहनवाज साहिब आराम कर रहे थे। पलवशा अपने कमरे में बंद होकर उकता चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो टहलती हुई अकबी लॉन की तरफ निकल गई जहाँ एक बड़ा और खूबसूरत खूबसूरत स्विमिंग पूल था। पानी निर्गु और शफाफ था, लेकिन वहां का माहौल बहुत संजीदा था। वहां वहाज का एक खास बॉडीगार्ड काला सूट पहने मुजस्समा बना खड़ा पहरा दे रहा था। पलवशा की शरारती तबीयत फिर से मचलने लगी। उदासी अपनी जगह, लेकिन बोरियत उसे मारे जा रही थी। उसे इधर उधर देखा और फिर गार्ड के करीब आई। वही बात सुनो। गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कि तुम्हारा अकरू खान का है, वही मिस्टर हिटलर वहाज शाह? उसने वहाज के बारे में पूछा, शायद उसे बुरा भला कहकर ही दिल का बोझ हल्का हो जाए। गार्ड फिर भी पत्थर का मुजस्समा बना रहा। पलवशा को शदीद चिढ़ होने लगी। वैसे तुम लोग रोबोट हो क्या, या बैटरी पर चलते हो? जब देखो हाथ बांध के खड़े रहते हो, थकते नहीं हो? हिल चुल लिया करो वरना जंग लग जाएगा। उसने गार्ड के चेहरे के आगे हाथ हिलाया, लेकिन उसने पलक तक नहीं चिपकी। पलवशा ने मुंह बनाया और सामने लगे आम के दरख्त की तरफ इशारा किया, जिस पर कच्चे आम लटक रहे थे। अच्छा सुनो, वो जो दरख्त है वहां पर आम तोड़कर ला के दो, मुझे भूख लगी है और किचन बहुत दूर है। उसने मालकाना अंदाज में ऑर्डर चलाया, लेकिन गार्ड अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसे वहाज की सख्त हदायत थी कि पलवशा की किसी बात का जवाब ना दे और ना ही अपनी ड्यूटी छोड़े। पलवशा का पारा हाई हो गया। ये घर था या पागल खाना? तुम गूंगे के साथ बहरे भी हो क्या? हद होती है बदतमीजी की। मैं दादा जान से शिकायत करूंगी, तुम सबकी। वो पैर पटक कर रह गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दीवारों से बातें कर रही है। उसका दिल चाहा कि जोर से चीखे, जैसा अकड़ू बॉस वैसी अकड़ी फौज, सबके सब नफसियाती है। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। पलवशा ने ऊंची आवाज में टॉन्ट मारा। वो गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए मुड़ी। उसका ध्यान गार्ड को कोसते और अपनी किस्मत पर रोने में इतना था कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो पूल के बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। अचानक उसका पाँव फिसला। टाइल्स गीली थी और उसके जूते की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। उसके मुंह से एक चीख निकली और उसका तवाजुन बुरी तरह बिगड़ गया। उसके हाथ हवा में लहराए ताकि वो किसी चीज को थाम सके, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। गार्ड एक लम्हे के लिए चौंका, लेकिन उसे पकड़ने के लिए बहुत दूर था। अगली लम्हे एक जोरदार चपाके की आवाज आई और वो सीधा ठंडे गहरे पानी के पूल में जा गिरी। पानी उसके सर के ऊपर से गुजर गया और वो बौखलाहट में हाथ पांव मारने लगी। मौत का खौफ एक लम्हे के लिए उसकी रगों पे में सराहत कर गया। मुलाजिम दूर से वहाज को तेज और गजबनाक कदमों से आता देखकर वहां से फौरन गायब हो गया, क्योंकि इस घर का बच्चा बच्चा जानता था कि वहाज शाह की मौजूदगी में किसी किस्म की गफलत की माफी नहीं मिलती। और आज तो उसके माथे की शिकनी बता रही थी कि तूफान आने वाला है। वहाज पूल के किनारे आकर रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नाकाबिले फहम तासुर था। अपने महंगे 3 पीस सूट में मलबूस पैंट की जेबों में हाथ डाले पानी में डूबती उबरती पलवाशा को देखने लगा। पानी की लहरें बेचैनी से हलकोरे ले रही थी। हेल्प! पलवाशा के मुंह से पानी के बुलबुले निकल रहे थे और उसके हाथ पांव चलने की रफ्तार मदम पड़ गई थी। वो बार बार पानी की गहराई में जा रही थी। वहां से एक सर्द और बेरहम नजर उस पर डाली। उसके दिल के किसी कोने में जैसे एक अजीब सा ठंडा सुकून उतरा। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी, उसकी अना को ललकार रही थी, और अब कुदरत खुद उसका हिसाब बराबर कर रही थी। और आज के सख्त लबों पर एक तंजिया और सफाक मुस्कुराहट उभरी। थोड़ा पानी पी ले तो शायद दिमाग की गर्मी कम हो जाए, उसने दिल में सोचा। लेकिन फिर मंजर बदला जब पलवशा के हाथ पांव मारने की रफ्तार खतरनाक हद तक कम होने लगी और वो पानी की सतह से नीचे जाने लगी। तो वह आज की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी पेशानी पर तशवीश की गहरी लकीरें उभरी। उसका दिल जो कुछ लम्हे पहले तक पत्थर बना हुआ था, अचानक सीने में जोर से दरका। गुस्सा और नफरत अपनी जगह, लेकिन वो वहाज शाह था और अपनी आंखों के सामने किसी को यूं बेबसी से मरते नहीं देख सकता था।
और फिर वो लड़की उसके दादा की अमानत थी। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में उसका फैसला बदला। वहाज ने फौरन अपना कोट और फिर महंगी जैकेट उतार कर एक तरफ घास पर फेंकी और बिना कोई लम्हा जाए किए जूतों समेत पूल के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। पानी का एक जोरदार छपाका हुआ जिसने लॉन की खामोशी तोड़ दी। वहाज गहराई में उसकी तरफ बढ़ा। पानी का दबाव, उसके बाहरी कपड़े उसकी हरकत को मुश्किल बना रहे थे, लेकिन उसके बाजू में बिला की ताकत थी। उसे पानी को चीरते हुए अभी पलवशा की कमर के गिर्द बाजू हमाल करने की के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक गैर मुतवक्का वाक़या हुआ। अगले लम्हे पानी की सतह चीरती हुई पलवशा ने अपना सर बाहर निकाला। वो किसी माहिर तैराकी मछली की तरह तेजी से सतह पर आई और उसने अपने और गीले और चेहरे पर चिपके हुए बालों को एक झटके से पीछे किया और अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से वहाज की तरफ देखा, जब तक पानी में से बचाने की पोजीशन में हैरान खड़ा था। वहाज अपनी जगह मुंजमद हो गया। पलवशा के चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में मौत का साया नहीं बल्कि एक भरपूर शरारत और जिंदगी नाच रही थी। उसके लबों पर एक फातिहाना हंसी थी जो वहाज के वजूद को आग लगाने के लिए काफी थी। उसे वहाज को पानी में भीगा हुआ हैरान और परेशान देखकर मुंह चढ़ाया और तेजी से तैरते हुए पुल के किनारे पहुंचकर बाहर निकल गई। मतलब ये सब ड्रामा था? वहाज की आवाज भारी और खतरनाक हद तक धीमी थी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो वहीं पानी में खड़ा अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ उसे घूरता रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी हमदर्दी और इंसानियत का यूं मजाक उड़ाया गया है। पलोशा ने पूल से बाहर निकलते ही वहाज की वो जैकेट उठाई जो उसने घास पर फेंकी थी और उसे अपने भीगे हुए कांधों पर डाल दिया। जैकेट उसे बहुत बड़ी थी जिसमें वो मजीद छोटी लग रही थी। बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया मिस्टर वहादशाह। हर वक्त हीरो बनने की जरूरत नहीं होती है। वो लहकते हुए बोली और एक जोरदार कहका लगाती गीले पैरों के निशान छोड़ती वहां से भाग खड़ी हुई। वहाज ने गुस्से से पानी में जोरदार हाथ मारा। पानी की छींटें हर तरफ उड़ गई। तुम्हारा ये हंसना बहुत जल्द चीखों में बदल दूंगा। पलवशा जहांगीर वो दांत पीस कर रह गया। आज तक किसी ने वहादशाह को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं की है और ये लड़की उसे उंगलियों पर नचा रही है। उसका दिल चाहा कि वो भी बाहर निकले और उसका गला दबा दे। वो पानी से बाहर निकला। उसका लिबास उसके जिस्म से चिपका हुआ था और उसका मूड अब तबाहकुन हद तक खराब हो चुका था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल में सुनाटा नहीं बल्कि एक तूफान से पहले वाली खामोशी थी। शाहनवाज साहिब अखबार पढ़ रहे थे जबकि वहाज खामोशी से इंतहाई नफासत के साथ अपने ऑमलेट को काट रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी का वो मास्क चढ़ा हुआ था जिसे देखकर मुलाजमीन भी करीब आने से घबराते थे। पलवशा जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कांटे और चम्मच प्लेट से टकराकर शोर पैदा कर रही थी। चीनी मिट्टी की प्लेट पर चम्मच लगने की टन टन की आवाज खामोश कमरे में गूंज रही थी जो वहाज के असाब पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वहाज ने कॉफी का मग लबों से हटाया और उसे तेज तनबिया भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में वाजिया पैगाम था, बाज आ जाओ, मगर पलवशा तो जैसे कसम खाकर आई थी कि आज उसका सुकून बर्बाद करके रहेगी। वो बिल्कुल अनजान बनी रही जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो कि वो कितना शोर कर रही है। आखिरकार वहाज के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। उसने जोर से चम्मच प्लेट में पटका। छन की आवाज ने शाहनवाज साहब को भी मुतवज्जा कर दिया। दादा जान, ये घर है कोई सेंट्रल जेल? पुलवशा ने वहाज को नजरअंदाज करते बराह रास्त शाहनवाज साहब से शिकवा किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुरदरी कैफियत थी। मुझे यहाँ दम घुटता है, दीवारें खाने को दौड़ती हैं। वहाज मुझे कहीं जाने नहीं देता, यहाँ तक कि लॉन में जाने के लिए भी मुझे गार्ड की इजाजत लेनी पड़ती है। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जिसे आप लोगों ने कैद कर रखा है। उसकी आवाज में भारीपन और आंखों में नमी थी। शाहनवाज साहब ने अखबार नीचे किया और शफकत से उसे देखा। बेटा, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है। तुम जानती हो हालात कैसे हैं। कैसी हिफाजत दादाजान? अगर बाहर खतरा है तो क्या इसका हल ये है कि मैं सारी जिंदगी इस चार दीवारी में कैद होकर मर जाऊं? ये हिफाजत नहीं, ये सजा है। इससे पहले कि शाहनवाज कुछ कह दे, वहाज की भारी और रोबदार आवाज गूंजी। हाँ, बाहर खतरा है और वो खतरा कोई आम नहीं। तुम्हारा वो मामूल लियाकत कोई मामूली गुंडा नहीं है। वो एक शिकारी है जो खाट लगाए बैठा है कि कब तुम अकेली मिलो और वो तुम्हें गायब कर दे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि दुनिया कितनी जालिम जगह है। वहाजी ने सख्ती से सफाई दी लेकिन उसका लहजा हाकिमाना था। पलवशा ने नफरत और गुस्से से उसे देखा। ये सब बहाने हैं। आप बस मेरी आजादी छीनना चाहते हैं और मेरी जायदाद पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। ये सब एक साजिश है ताकि मैं पागल हो जाऊं और आप लोग मेरी दौलत हड़प कर जाएं।
परोशा का ये जुमला वहाज की गैरत पर एक तमाचा था। उसकी आंखों में चिंगारियां भड़क उठी। वो तेजी से अपनी कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया, जैसे वो अभी उसे अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। लेकिन शाहनवाज साहब ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वहाज, बैठ जाओ। पलवशा ने नफरत से वहाज को देखा और नाश्ता अधूरा छोड़कर कुर्सी धकेलती पैर पटकती वहां से चली गई। वहाज ने मेज के किनारे को इतनी जोर से भींचा कि उसकी पूरे सफेद पड़ गई। उस एहसान फरामोश और जिद्दी लड़की की हिफाजत करना दुनिया का सबसे मुश्किल और थका देने वाला काम था। शाम के साय गहरे होते हो रहे थे जब पलवशा तैयार होकर लाउंज में आई। आज उसकी यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी थी और ये उसका आखिरी दिन था। उसे गहरे नीले रंग का खूबसूरत गाउन पहन रखा था, जिसमें वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसने वहाद से बात करने के बजाय सीधा शाहनवाज साहब के कमरे का रुख किया। दादा जान, आज मेरा यूनिवर्सिटी में लास्ट डे है और फेयरवेल पार्टी है और सब फ्रेंड जा रही है। मुझे जाना है, प्लीज मना मत कीजिएगा। मैं वादा करती हूँ जल्दी वापस आ जाऊंगी, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा और हाथों को जोड़ लिया। शाहनवाज साहब तजब्जब का शिकार हो गए। वो जानते थे कि बाहर हालात ठीक नहीं है, दुश्मन मौका की ताक में है, लेकिन वो अपनी डांटी पोती का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे, जो पहले ही बहुत ज्यादा गमज़दा थी। ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है। क्या? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तलवशा का चेहरा खिल उठा। वह आज तुम्हारे साथ जाएगा, वो तुम्हें ड्रॉप करेगा और वहीं तुम्हारा इंतजार करेगा जब तक फंक्शन खत्म ना हो जाए। तुम उसके बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगी। तलवशा का मुंह बन गया, जैसे किसी ने मिठाई खिलाकर करेले का जूस पिला दिया हो, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। दूसरी तरफ जब वहाज को ये हुक्म मिला तो वो बुरी तरह झिंझला गया। उसे एक अहम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी थी, लेकिन दादा के हुक्म के आगे उसकी सारी मसरूफियात हिच थी। रास्ते में गाड़ी में दोनों के दरमियान सर जंग जारी थी। गाड़ी का माहौल इतना घुटन ज़दा था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उल्वशा ने जानबूझकर वहाज को चिढ़ाने के लिए गाड़ी का साउंड सिस्टम ऑन किया और रॉक म्यूजिक फुल वॉल्यूम में लगा दिया। गाड़ी में एक जोरदार शोर गूंजने लगा। वहाज ने ड्राइविंग करते दांत पीसे और गुस्से से एक झटके से सिस्टम बंद कर दिया। मेरी गाड़ी में ये शोर शराबा नहीं चलेगा। ये गाड़ी है डिस्को क्लब नहीं, ये शोर नहीं म्यूजिक है जो आप जैसे बेजोक लोगों को समझ से बाहर है। पलवशा ने तंग कर जवाब दिया। तो दोबारा हाथ बढ़ाकर वॉल्यूम बढ़ा दिया। वहाज ने सड़क के बीचों बीच अचानक ब्रेक लगाई। टायरों की चीख सुनाई दी और पलवशा बुरी तरह से आगे की तरफ गिरने लगी। उसने खौफजदा होकर वहाज को देखा, जो सीट बेल्ट खोलकर मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुड़ा हुआ था। गाड़ी के अंदर की लाइट्स में उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक लग रहा था। अगर तुम चाहती हो हम यहीं से वापस घर जाए तो चुपचाप बैठ जाओ, और ना मैं तुम्हें यहीं सड़क पर उतार दूंगा और फिर तुम पैदल घर जाओगी। चॉइस तुम्हारी है। उसकी आंखों में एक ऐसी संजीदगी और सख्ती थी कि पलवशा सहम गई। उसे अंदाजा हो गया कि ये बंदा सिर्फ धमकियां नहीं देता, अमल भी करता है। उसे मुंह फुलाकर खिड़की की तरफ रुख कर दिया। बाकी का रास्ता मौत जैसी खामोशी में कटा, लेकिन फिजा में तनाव महसूस किया जा सकता था। फेयरवेल पार्टी शहर की एक बहुत बड़े और आलीशान मार्की में मुनाकिद की गई थी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, मौसीकी और फूलों की सजावट थी। नौजवान लड़के लड़कियां अपनी दुनिया में मगन थे। पलवाशा वहां पहुंचकर बहुत खुश थी। वो अपनी सहेलियों के साथ घुल मिल गई, हंसते बोलने लगी। वहां एक कोने में खड़ा स्याह सूट में मलबूस, बाजू सीने पर बांधे अपनी अकाबी नजरों से हर चीज और हर शख्स का जायजा ले रहा था। उसे यहाँ का बेहंगम माहौल, लड़कों की बेबाक नजरें और बुलंद मौसीकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे हर चेहरे में दुश्मन दिखाई दे रहा था। तकरीब आगे बढ़ी और अचानक स्टेज सेक्रेटरी ने डांस परफॉर्मेंस का ऐलान किया, और अब अपनी दिलकश परफॉर्मेंस से स्टेज को आग लगाने आ रही है हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत स्टूडेंट पलवशा जहांगीर। हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। वो हाथ चौंक गया। उसे मालूम नहीं था कि वो परफॉर्म करने वाली है। जब पलवशा मौसीकी की तेज धुन पर स्टेज पर आई तो उस पर पड़ती स्पॉटलाइट्स ने उसे मरकज़े निगाह बना दिया। वो बिला की हसीन लग रही थी। उसकी हर हरकत में नजाकत और अदा थी। वो जैसे ही डांस करने लगी, हॉल में मौजूद हर लड़की की नजर उस पर जम गई। हर आंख में सताइश के साथ साथ एक हवस भी थी, जो आज की नजरों से छुपी नहीं थी। आज को यूं लगा जैसे किसी ने उसके पूरे जिस्म में 440 वाट का करंट दौड़ा दिया हो। वो अपनी जगह पर पत्थर का हो गया। पलवशा को यूं सबके सामने कमर थड़काते, मुस्कुराते और लोगों की तफरीह का सामान बनते देख उसके अंदर एक अजीब सी जलन, गैरत और गुस्से ने जन्म लिया।
उसकी रगों में खून तेजी से गर्दिश करने लगा। उसने आसपास खड़े लड़कों को देखा जो कि पलवशा को देखकर इशारे कर रहे थे। वहाज का खून खौल उठा। उसकी खानदानी गारत ये गवारा नहीं कर सकती थी कि कोई उसके घर की लड़की उसकी जिम्मेदारी को यूं देखे। उसकी मुट्ठियां सफेद पड़ गई। वो पागलों की तरह स्टेज की तरफ बढ़ा। उसका इरादा था कि पलवशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से घसीटता हुआ ले जाए और उस बेहुदा तमाशे को खत्म करे। आज मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, वो गुस्से से बुड़बुड़ाया। वो भी हजूम को चीरता हुआ लोगों को धक्के देता आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक हाल की तमाम लाइट्स बंद हो गई। हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। मौसीकी रुक गई और एक लम्हे के लिए सन्नाटे के बाद लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। उसी अंधेरे में पलवशा के मामू लियाकत के भेजे हुए पेशावर गुंडे जो कि वेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के बेस में वहां पहले से मौजूद थे, तेजी से स्टेज की तरफ बढ़े। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पलवशा थी। वहाज की छठी हिस्स बहुत तेज थी। वो खतरे की बूझ सुन चुका था। वो अंधेरे में भी किसी चीते की तरह स्टेज पर छलांग लगाकर पहुंचा। उधर एक कोंडे ने पलवशा को बाजू से पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन वहाज ने अंधेरे में उसके जबड़े पर एक जोरदार भरपूर मुक्का रसीद किया। हड्डी टूटने की आवाज आई और वो शख्स लड़खड़ा कर पीछे गिरा। वहाज ने फौरन पलवशा की कलाई थामे से अपने पीछे छुपाया। उसी लम्बे फायरिंग शुरू हो गई। ठाए ठाए की आवाजों ने पूरे हॉल में पगदर मचा दी। हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। गोलियों की तरतराहट ने खुशी के माहौल को मैदान जंग में बदल दिया था। मेरे साथ आओ, जल्दी नीचे झुको। वहाज ने पलवशा के कान में चीख कर कार से बचाते हुए मार्की के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। वो उसे अपनी ढाल बनाए हुए था। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि कोई गोली पलवशा तक ना पहुंचे। पलवशा खौफ से कांप रही थी। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो चुका था और पैर मनो वजनी हो गए थे। वो इसीलिए मार्केट के बैक गेट से बाहर निकला जहां अंधेरा और सुनाटा था। वहां पहुंचकर पलवशा को होश आया कि वहाज ने उसका हाथ कितनी सख्ती से पकड़ रखा है। उसकी नाजुक कलाई वहाज की फौलादी गिरफ्त में बुरी तरह से दुख रही थी। उफ, छोड़े मेरा हाथ, मोटे सांड जैसे हाथ है तुम्हारे। कलाई तोड़ दी है मेरी, मुझे दर्द हो रहा है। पलवशा ने इसकी नाजुक और जानलेवा सूरत हाल में भी अपनी जुबान चलाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वहां जो अपनी जान हथेली पर रखकर उसे मौत के मुंह से निकाल कर लाया था, उसकी इस बदतमीजी और नाशुक्री पर उसके दिमाग की रगें फटने लगी। उसका सबर जवाब दे गया। उसने उसे छोड़ने के बजाय एक झटके से अपनी तरफ खींचा और सामने मौजूद खुरदरे सीमेंट की दीवार के साथ लगा दिया। वहाज ने अपने दोनों हाथ पलवशा के दाएं बाएं दीवार पर टेक करके उसे अपने मुकम्मल हिसार में ले लिया और अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले आया। इतना करीब कि पलवशा को उसकी गर्म और तेज सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वहाज की आंखों में वहशत, जुनून और गुस्सा नाच रहा था। मेरा दिमाग खाने की ना जरूरत नहीं है मिस पलवशा। एक तो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, ऊपर से तुम नखरे दिखा रही हो। वहाज की आवाज किसी जख्मी शेर के काराने जैसी थी। बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें अपने जिस्म और के जलवे और रानाइयां दिखाने का, हजारों लोगों के सामने तमाशा बनने का। अगर इतना ही शौक है, एक आस्ताना खोल दूं जहां नाच नाच के लोगों को बहला। लेकिन जब तक तुम मेरे नाम के साथ जुड़ी हो या मेरे घर में हो, मैं ये बेगैरती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी बातें पिघले हुई शीशे की तरह पलवशा के कानों में उतरी और रूह को झलसा गई। उसकी आंखों में नमी और गुस्सा बैक वक्त उमड़ आया। उसे अपनी तौहीन महसूस हुई। उसने आओ देखा रहता हो अपना हाथ उठाया ताकि वहाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार सके और उसका मुंह बंद कर सके। लेकिन वो वहाज शाह था। उसके रिफ्लेक्सेस बिजली से ज्यादा तेज थे। उसने हवा में ही पलवशा का हाथ इतनी बेदर्दी से कलाई से पकड़ा और उसे मरोड़ते उसकी कमर के पीछे कर दिया। पलवशा के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली और तड़प उठी। उसका जिस्म वहाज के सख्त सीने के साथ लग गया। वहाज ने उसका चेहरा दोनों हाथ के अंगूठे और उंगलियों से दबोचकर दोबारा जबरदस्ती ऊपर किया और उसकी आंखों में देखा। खबरदार दोबारा दोबारा ऐसी हरकत की तो, और ना वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत दो। वहां जब भी मजीद कुछ बोलने ही वाला था कि करीब से दोबारा गोलियों की आवाज आई। उसे पलवशा को छोड़ा और उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी की तरफ भागा। अब बहस का वक्त नहीं था। दुश्मन सर पर पहुंच चुके थे। वो दोनों भागते हुए गाड़ी के करीब पहुंचे ही थे
کہ اندھیرے سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی۔ وہاج کی چھٹی حص نے خطرے کو بھانپ لیا۔ اس نے پلوشا کو بچانے کے لیے اسے پوری قوت سے دھکا دیا کہ گاڑی میں آر میں کیا، لیکن اس کی کوشش میں وہ خود نشانے پر آ گیا۔ گولی اس کے بازو کے گوشت کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہاج کے منہ سے ایک دبی ہوئی کراہ نکلی۔ اس کے بازو سے گرم خون کا فوارہ پھوٹ پڑا جس نے اس کی سفید قمیض کو لمحوں میں سرخ کر دیا۔ پلوشا کی چیخ نکل گئی۔ وہاج، یہ گولی ماموں کی خاص آدمی نے چلائی تھی جو سامنے کھڑا نشانہ لے رہا تھا۔ وہاج گرا نہیں، نہ ہی رکا۔ درد کی شدید لہر کے باوجود اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پاکٹ سے گن نکالی اور بجلی کی سی تیزی سے سامنے کھڑے شخص پر فائر کیا۔ نشانہ پکا تھا۔ گولی سیدھی حملہ آور کے ماتھے پر لگی اور وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھے جلدی وہاج نے درد کو ضبط کرتے حکم دیا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اب تک پوزیشن سنبھال لی تھی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہاج نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ٹائروں کی چیخ کے ساتھ گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ مینشن پہنچتے ہی ملازمین دوڑ پڑے۔ وہاج گاڑی سے اترا تو اس کا بازو خون سے تر تھا اور خون ٹپک کر فرش پر گر رہا تھا۔ پلوشا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گئے آ گئے ہیں۔ اس کی نظریں صرف وہاج کے خون آلود بازو پر تھی۔ تمہیں گولی لگی ہے، بہت خون بہ رہا ہے، پلوشا نے اپنی کلائی کا درد پلاتے لرزتی آواز میں کہا۔ خون دیکھ کر اس کا دل دہل رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اندر جاؤ، وہاج نے تان پیستے ہوئے کہا۔ درد کی شدت بڑھ رہی تھی اور اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ کمزور پڑنا نہیں جانتا تھا۔ وہ لڑکھڑا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر گر گیا۔ پلوشا بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لائی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کی۔ وہاج نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ رہنے دو، ڈاکٹر آ رہا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، چپ کرو، بالکل خون بہ رہا ہے اور تمہیں ڈاکٹر کی پڑی ہے، اور کتنی ضد کرو گے؟ پلوشا نے پہلی بار اسے ڈانٹا اور زبردستی اس کی قمیض کا بازو پکڑ کر پھاڑا۔ زخم گہرا تھا اور گوشت ادھیڑ چکا تھا۔ پلوشا کا دل ایک لمحے کے لیے بند ہوا، لیکن اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے روئی سے خوفناک خون صاف کیا اور اینٹی سیپٹک لگا کر پٹی باندھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر وہاج کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ وہاج خاموشی سے سر ٹیکے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں موجود فکر مندی، ڈر اور آنسو دیکھ کر وہاج کے دل میں جمی برف پگھلنے لگی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو صبح اسے کوس رہی تھی، نفرت سے دیکھ رہی تھی اور اب اس کے لیے رو رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ وہاج کے زخم پر مرہم نہیں رکھ رہے تھے، بس کہ اس کے دل کے کسی ویران گوشے کو آباد کر رہے تھے۔ اس رات درد اور دوا کی تیز مہک کے درمیان پلوشا نے انجانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاج کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ یہ نفرت کے ختم ہونے کی نہیں بلکہ محبت کے آغاز کی پہلی دستک تھی۔ اس خونی شام کے بعد شاہ نواز ولا کی فضا میں ایک خاموش مگر گہری تبدیلی آ چکی تھی۔ وہاج کے بازو پر لگی گولی کا زخم بھر رہا تھا، لیکن اس زخم نے ان دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار میں ایک بڑی سی درار ڈال دی تھی۔ پلوشا پہلے کی طرح اس سے ہر وقت الجھتی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہاج کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہاج کی سختی صرف ایک خول ہے جس کے اندر ایک ذمہ دار اور حفاظت کرنے والا انسان چھپا ہوا ہے۔ دوسری طرف وہاج بھی پلوشا کی تیمارداری اور فکر کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ دوائی کا وقت ہوتے ہی پانی اور گولیاں لیے سر پر کھڑی ہو جاتی تو وہاج کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ تاہم شاہ نواز صاحب اپنی عقابی نظروں سے اس کے بدلتے ہوئے موسموں کو بانپ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پلوشا کی جان کو ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور وہاج ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ انہیں ایک مضبوط اور دائمی رشتے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک شام انہوں نے دونوں کو اپنے اسٹڈی میں طلب کیا۔ ماحول میں سنجیدگی تھی۔ وہاج صوفے پہ بیٹھا تھا، اس کا زخمی بازو ابھی تک سیلنگ پہ تھا، جبکہ پلوشا ادب سے دادا جان کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، شاہ نواز صاحب نے تحمید باندھے بغیر بات شروع کی۔ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ لیاقت اتنی آسانی سے پیچھے ہٹے گا۔ پلوشا کی حفاظت اب میری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے ایک سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں نکاح کر لو۔ کمرے میں جیسے بم پھٹا ہو۔ پلوشا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے گالوں پر اچانک سرخی دوڑ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دل کی چھپی ہوئی خواہش یوں اچانک سامنے آ جائے گی۔ وہ وہاج کو چاہنے لگی تھی۔ اس کی بہادری اور شخصیت نے اسے متاثر کر دیا تھا۔ اسے چوری چھپے وہاج کی طرف دیکھا، لیکن وہاج کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔
اس کے چہرے پر ناگواری اور حیرت کے تاثرات ابھرے. کہ آپ کیا کر رہے ہیں دادا جان؟ یہ ناممکن ہے. وحاج نے دو ٹوک انکار کیا. پلوشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہو. وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. کیوں ناممکن ہے؟ شاہ نواز صاحب نے پرسکون لہجے میں پوچھا. کیونکہ یہ ابھی بچی ہے، اسے دنیا کی سمجھ نہیں ہے. یہ شادی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہوگی جو میں زبردستی اپنے سر نہیں لینا چاہتا. اور ویسے بھی ہماری طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں اس ضدی اور لاپرواہ لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. وحاج کے لہجے میں فیصلہ کن سختی تھی. پلوشا کی آنکھوں میں تیرتی امید دم توڑ گئی. اسے لگا جیسے وحاج نے بڑی محفل میں اس کے جذبات کا تماشا بنا دیا ہے. وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکی اور روحانسی ہو کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی. پلوشا اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی. اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنا سامان باندھے اور یہاں سے چلی جائے، مگر باہر موت اس کا انتظار کر رہی تھی. لیکن وہ پلوشا جہانگیر تھی، اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی. اس نے اپنے آنسو پونچھے اور آئینے میں خود کو دیکھا. تمہیں لگتا ہے میں بچی ہوں وحاشا؟ تو ٹھیک ہے، اب یہ بچی تمہیں بتائے گی کہ وہ کیا کر سکتی ہے. اس نے غصے سے فیصلہ کیا اور سیدھی وحاج کے جم کی طرف بڑھی. جم میں بھاری ڈمبلر اٹھانے کی آوازیں آ رہی تھی. وحاج اپنا غصہ اور فرسٹریشن ورزش کے ذریعے نکال رہا تھا. وہ پسینے بھی شرابور تھا اور اس کے بازو کے پٹھے تنے ہوئے تھے. پلوشا دروازہ کھول کر طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی. تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ پلوشا نے اس کے سامنے جا کر اونچی آواز میں سوال کیا. وحاج نے وزنی ڈیمپل نیچے رکھا اور تولیے سے چہرہ صاف کرتے اسے سرد نظروں سے دیکھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے. میں نہیں جاؤں گی جب تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل جاتا. تم نے دادا جان کے سامنے انکار کیوں کیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ پلوشا کی آواز میں دکھ اور غصہ ملا ہوا تھا. وحاج اس کے قریب آیا. اس کا قد پلوشا پر سایہ فقط تھا. دیکھو پلوشا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو. میں ایک سنجیدہ انسان ہوں اور مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے. تم جیسی روزانہ کی مصیبت نہیں. اسے بے دردی سے سچ بولا. اور ویسے بھی سوچ چڑیلے مری ہوں گی تو تم نے جنم لیا ہوگا. تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے. وحاج کے اس جملے نے پلوشا کے تن بدن میں جیسے آگ لگا دی. اسے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور تن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. اگر میں چڑیل ہوں تو تم بھی بھوتوں کے سردار ہو. شکل دیکھیے اپنی، ہر وقت سڑے ہوئے کریلے کی طرح منہ بنایا ہوتا ہے. میں پھر بھی مان گئی تھی نا. تم بھی مان جاؤ، دادا جان کی خوشی کے لیے، میری حفاظت کے لیے. پلوشا نے آخری بار کوشش کی. اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اسے منانے کی کوشش کی. لیکن وحاج اپنی ضد کا پکا تھا. بھول کے بھی نہ سوچنا، شادی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا اور میں تمہارے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیل سکتا. میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں پلوشا. اس نے فیصلہ سلا کر دوبارہ ڈمبلر اٹھا لیے. پلوشا اسے دیکھتی رہ گئی. اس لمحے اس کے اندر کچھ ٹوٹا. اس ضدی لڑکی نے اس کی بات کو بہت زیادہ سیریسلی لے لیا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری، ایک ایسا چیلنج جسے اب وحاج کو بھگتنا تھا. ٹھیک ہے، اگر تم نہیں تو کوئی اور صحیح. پلوشا نے اسمارٹ لہجے میں کہا. وحاج کے ہاتھ رکے لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. میں دادا جان کو کہہ دوں گی کہ آپ نہیں مان رہے تو میری شادی کہیں اور کرتے. بہت سے لوگ ہیں جو پلوشا جہانگیر سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں. تمہیں بہت جلد میری شادی کا کارڈ مل جائے گا. کھانا کھانے آ جانا. وہ اسے تپا کر پیر پٹکتی ہوئی جم سے باہر نکل گئی. وحاج نے غصے سے ڈمبلر زمین پر پٹک دیے. فرش پر زوردار آواز پیدا ہوئی. اسے سمجھ نہیں آیا کہ پلوشا کے اس جملے پر اسے اتنا غصہ کیوں آیا. اگلے 2 دن گھر میں عجیب کشمکش میں گزرے. شاہ نواز صاحب اور گھر کے دیگر ملازمین بھی وحاج کو منانے کی کوشش کرتے رہے. اشاروں کناروں میں اسے سمجھاتے رہے کہ پلوشا جیسی لڑکی اسے دوبارہ نہیں ملے گی. لیکن وحاج کو جیسے چپ لگی ہوئی تھی. اس نے اس موضوع پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا. دوسری طرف پلوشا نے ایک نیا ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ وحاج کی انا کو توڑنا چاہتی تھی. اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ کیا کھو رہا ہے. رات کے کھانے کی میز پر سب موجود تھے. ماحول میں خاموشی تھی. پلوشا نے گلا صاف کیا اور پر اعتماد لہجے میں شاہ نواز صاحب سے مخاطب ہوئی. دادا جان، آپ میری حفاظت اور شادی کو لے کر پریشان ہے نا؟ تو میں نے آپ کی پریشانی حل کر دی ہے. وحاج کے ہاتھ میں نوالا رک گیا. اس کے کان کھڑے ہو گئے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے. میرا یونیورسٹی فیلو ہے سمیر. وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور کافی عرصے سے پرپوز بھی کر رہا تھا. وہ ایک بہت اچھی فیملی سے ہے اور میرا خیال رکھے گا. میں نے اسے ہاں کر دی ہے. شاہ نواز صاحب حیرت سے پلوشا کا منہ دیکھنے لگے. وہ جانتے تھے کہ پلوشا جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ وہ پلوشا کی رگ رگ سے واقف تھے.
लेकिन पलवशा की आंखों में मौजूद इशारे को समझते वो खामोश रहे। अगर तुम खुश हो बेटा तो मुझे कोई इतराज नहीं। शाहनवाज शाही ने इस ड्रामे में हिस्सा डाला। वह हाथ ने जोर से काटा, प्लेट में मारा। चीली मिट्टी की प्लेट पर चटकती। सबने चौंक कर से देखा। क्या हुआ वहां? शाहनवाज साहब ने पूछा। कुछ नहीं, बुक नहीं है। वो कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया और तेज कदमों से वहां से चला गया। पलवशा के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभी। तीर इशारे पर लगा। वहां जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसका दिमाग गुस्से से खौल रहा था। समीर? ये कौन है समीर? उस सवाल ने उसे पागल कर दिया। उसे गुस्से में आकर बेड साइड टेबल पर रखा लैंप उठाकर दीवार पर दे मारा। लैंप के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर उसने सामने पड़ी ड्रेसिंग टेबल की चीजें हाथ मारकर नीचे गिरा दी। शीशे टूटने की आवाजें उसके अंदर के तूफान की खुमासी कर रही थी। वो शदीद गुस्से में कमरे की चीजें तोड़ रहा था, लेकिन अपनी अना की वजह से जुबान से कुछ नहीं कह पा रहा था। वो खुद से लड़ रहा था। अगर उसे पलवशा की परवाह नहीं थी तो उसके किसी और से मंसूब होने पर उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? वो बालकनी में खड़ा हो गया और सिगरेट सुलगा ली। धुएं के मरखूलों में उसे पलवशा का मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो पलवशा, सिर्फ मेरी। उसके दिल ने गवाही दी, लेकिन जुबान पर ताले पड़े थे। दिन तेजी से गुजरे। पलवशा ने अपने झूठे मंगनी के ड्रामे को हकीकत का रंग देने के लिए घर में हंगामा मचा रखा था। कभी वो फोन पर किसी फर्जी समीर से हंस हंस कर बातें करती, जो वहाज को जलाने के लिए काफी होता, और कभी वो शॉपिंग बैग्स लाकर दिखाती कि इसके होने वाले ससुराल वालों ने बेचे हैं। वहाज का पारा हर गुजरते दिन के साथ चढ़ता जा रहा था। वो घर में कम और बाहर ज्यादा रहने लगा था, ताकि वो पलवशा को किसी और के नाम के साथ जुड़ता हुआ ना देख सके और ना सुन सके। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जब पलवशा ने अपनी झूठी मंगनी का ऐलान कर दिया। घर में छोटी सी तकरीब रखी गई। पलवशा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसका दिल अंदर से रो रहा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शायद अब भी वहां जाए, उस तमाशे को रोक ले, उसका हाथ थाम ले और कहे कि उसे किसी और का होने नहीं देगा। लेकिन वहां नहीं आया। उसी दोपहर पलवशा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो पलवशा बेटा, शायद तुमने गलत जगह दिल लगा लिया है। दूसरी तरफ से उसके मामू लियाकत की मकरवा आवाज आई। पलवशा के रूंगटे खड़े हो गए। उसे कैसे पता चला? वो इनकार कर चुका है पलवशा। तुम्हारा वो आशिक वहाद शाह वो नहीं आएगा। वो तो तुम्हें बहुत समझता है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? लियाकत जहर उगल रहा था। बकवास बंद करो अपनी। पलवशा ने चीख कर फोन बंद कर दिया। उसका सांस फूल रहा था। कुछ देर बाद दादा जान उसके कमरे में आए और पलवशा की उदासी और बेचैनी को महसूस कर रहे थे। बेटा, तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि कोई समीर नहीं है। उन्होंने पलवशा के सर पर हाथ रखा। पलवशा फूट फूट कर रो पड़ी। दादा जान, वो मान क्यों नहीं रहे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं मेरी जान, वो बस अपनी अना का कहती है, उसे वक्त दो। वो भी बात कर ही रहे थे कि अचानक नीचे से शोर और फायरिंग की आवाज आई। शाहनवाज साहब चौंक कर खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि वो बाहर निकलते, कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से खुला। चंदा का पोश मसला अफराद अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में जदीद असला था। खबरदार को हिला तो गोली मार दूंगा। उनमें से एक ने गर्ज कर कहा। पलवशा खौफ से दादा जान के पीछे छुप गई। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे दाखिल हुए? मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? शाहनवाज साहब ने दहाड़ कर पूछा। आपकी सिक्योरिटी बिक चुकी है बूढ़े मियाँ। नकाबपोश हंसा। घर की एक पुराने मुलाजिम में जिसे लियाकत ने भारी रकम का लालच दिया था। पिछला दरवाजा खोल दिया और सिक्योरिटी सिस्टम को जाम कर दिया। इस लड़की को उठाओ, लीडर ने इशारा किया। दो आदमी आगे बढ़े और पलवशा को बाजू से पकड़कर घसीटा। दादा जान, पलवशा चीखी। शाहनवाज साहब ने रोकने की कोशिश की तो एक आदमी ने राइफल का बट उनके सर पर मारा। वो चकरा कर जमीन पर गिर गया। खबरदार जो पुलिस को खबर दी और पोती की लाश मिलेगी। वो लोग पलवशा को लेकर तेजी से बाहर निकल गए। पलवशा की चीखें और पुकार शाहनवाज विला की दीवारों से टकरा कर रह गए। इतनी सख्त सिक्योरिटी और वहाज की हिफाजती इंतजाम के बावजूद घर के अंदर की गद्दारी ने सब कुछ मिलियामिट कर दिया। आज उस वक्त घर पर नहीं था और यही दुश्मनों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया है। शाहनवाज में हिला में होने वाली तबाही की खबर वहाज तक पहुंचने में सिर्फ चंद मिनट लगे। वो इस वक्त शहर के दूसरी तरफ एक अहम बिजनेस डील के सिलसिले में मौजूद था। जब सिक्योरिटी हेड की कांपती आवाज में उसे ये बताया गया कि घर पर हमला हुआ है और पलवशा को अगवा कर लिया गया, तो वहाज के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन किरची किरची हो गया। उसके चेहरे से खून गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसी वहशत ले ली जिसे देखकर
उसके सामने बैठे क्लाइंट्स भी घबरा कर खड़े हो गए। गाड़ी निकालो फौरन, उसे दहाड़ते हुए हुक्म दिया। उसके बाद किसी जख्मी शेर की तरह थी जो अपने इलाके में होने वाली मुदाखलत पर बिछड़ गया हो। वो भागता हुआ अपनी गाड़ी में पहुंचा। उसका दिमाग सुन हो रहा था, मगर हाथों ने मशीनी अंदाज में काम किया। उसने अपना लैपटॉप खोला और ट्रैकिंग सिस्टम ऑन किया। तलवशा को शायद इल्म नहीं था, मगर उसकी हिफाजत के जुनून में मुब्तला वहाज ने उसके डायमंड इयररिंग में उसने तोहफे के तौर पर दादा जान के जरिए भिजवाए थे। दुनिया का सबसे छोटा और जदीद तरीन जीपीएस ट्रैकर नस्ब करवा रखा था। स्क्रीन पर एक सुर्ख नुक्ता तेजी से शहर के मजाफात की तरफ बढ़ रहा था। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते लियाकत, आज तुम्हारी मौत तुम्हें खुद मेरे पास बुला रही है। वहाज ने गाड़ी को हवा के दोष पर डाल दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर मौजूद बाकी गाड़ियां सहम कर साइड पर हो गई। उसकी आंखों में पलवशा का खौफजदा चेहरा घूम रहा था। अगर उसे एक खराश भी आई तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। शहर से बाहर एक वीरान और कदीम गोदाम में लियाकत अपने गुंडों के साथ मौजूद था। पलवशा को एक कुर्सी के साथ रस्सियों से बांधा गया। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। देखा बाजी, आखिरकार तुम मेरे कब्जे में आ ही गई। अब वो बूढ़ा शाहनवाज और उसका मगरूर पोता कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे ही तुम जायदाद के कागजात पर दस्तखत करोगी, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है। लियाकत ने फतहबंदी से कहका लगाया। पलवशा ने नफरत से उसे देखा और कुछ बोलने की कोशिश की, मगर टेप की वजह से सिर्फ हूं की आवाज निकली। अचानक गोदाम का आहिनी दरवाजा एक जोरदार धमाके से उड़ा। धूल और मिट्टी का एक तूफान उठा और गुबार के दरमियान से वह हादसा नमदार हुआ। उसके हाथ में एक जदीद पिस्टल था और आंखों में जहन्नम की आग जल रही थी। वहाज लियाकत के मुंह से बेगटार निकला। वो खौफ से पीछे हटा। मारो, इसे खत्म करो। इसको लियाकत के इशारे पर 10 गुंडे वहाज की तरफ लग गए। लेकिन आज उनका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि एक बिछड़े हुए तूफान से था। वहाज ने पिस्टल एक तरफ फेंका क्योंकि वो नहीं उन्हें गोली से नहीं अपने हाथों से मारना चाहता था। पहला शख्स जो करीब आया, वहाज ने उसकी कलाई मरोड़ कर उसे हवा में उछाल दिया और एक ही टांग के वार से उसे दूर जा फेंका। वो अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। उसका हर मुक्का, हर वार इतना कारी था जिसको लगता वो दोबारा उठने के काबिल न रहता। हड्डियां टूटने की आवाजें गोदाम में गूंज रही थी। वहाज के अपने बाजू का जख्म खुल गया और खून बह रहा था, मगर उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसका जुनून सिर्फ पलवशा तक पहुंच रहा था। पलवशा फटी फटी आंखों से उसे दिख रही थी। वो शख्स जो उसे मगरूर और लापरवाह लगता था, आज उसके लिए मौत के मुंह में चला आया था। कुछ ही देर में तमाम गुंडे जमीन पर पड़े करा रहे थे। वहाज का सांस फूल रहा था और कमीज खून से मिट्टी से अटी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लियाकत की तरफ बढ़ा। लियाकत जो भागने की कोशिश कर रहा था, ठोकर खा कर गिर गया। वहाज ने उसके गिरेबान से पकड़कर उसे उठाया और दीवार के साथ दे मारा। मैंने कहा था ना लियाकत, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा। वहाज ने अपना मुक्का हवा में लहराया कि बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। पुलिस की भारी नफरी ने गोदाम को घेरे में ले लिया। वहाज ने हकारत से लियाकत को जमीन पर पटका। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर लियाकत और उसके साथियों को हथकड़ियां लगा दी। वहाज तेजी से पलवशा की तरफ लपका। उसे कांपते हाथों से उसकी रस्सियों को खोला और उसके मुंह से टेप हटाई। पलवशा आजाद होते ही लड़खड़ाई। वहाज ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन पलवशा ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। दूर रहो मुझसे पलवशा, चीखी। उसके लहजे में खौफ नहीं बल्कि शदीद गुस्सा और दुख था। वो सदमे और जज्बाती टूट फूट का शिकार थी। पलवशा, होश में आओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वहाज ने उसे समझाने की कोशिश की। क्यों बचाने आए हो? क्यों? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। मैं तो एक मुसीबत हूँ। मरने देते मुझे, कम से कम तुम्हारी जान तो छूट जाती। वो रोते हुए उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। उसका हर लफ्ज वहाज के दिल को चीर रहा था। वहाज ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल मत बनो, चलो गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं पैदल चली जाऊंगी, सड़क पर टहलूंगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। पलवशा ने जिद करते अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। वो गोदाम के दरवाजे की तरफ भागी। बाहर अभी भी खतरा हो सकता था। वहाज का जब्त टूट गया। वो जानता था कि पलवशा के अगवाकार सिर्फ जायदाद के पीछे नहीं थे, बल्कि उनकी दुश्मनियां बेशुमार थी जो पलवशा की जान की दुश्मन बन चुकी थी। वो लंबे डग बढ़ता उस तक पहुंचा और उसे बाजू से खींच कर अपने करीब किया। मेरी बात गौर से सुनो जिद्दी लड़की,
तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसने पलवशा को तकरीबन घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक लाया। उसके सिक्योरिटी गार्ड दूर दूर तक फैल चुके थे और पोजीशन ही संभाल ली थी। पलवशा मुसलसल मुजाहमत कर रही थी, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। आहाश ने दरवाजा खुला और उसे जबरदस्ती अंदर बिठाया। चलो। पलवशा ने बाहर निकलने की कोशिश की तो आहाश भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सेंट्रल लॉक लगा दिया। उसे गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकाल ले गया। रास्ते भर गाड़ी में मौत का सा सुनाटा था। पलवशा सिसकियां ले रही थी और खिड़की से बाहर दिख रही थी। आहाज की गिरफ्त स्ट्रिंग व्हील पर इतनी सख्त थी कि उसके पूर पूर सफेद पड़ चुके थे। उसे पलवशा की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जानता था कि अगर आज उसने बात ना की तो शायद उसे हमेशा के लिए खो देगा। उसे गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे रोक दी। पलवशा ने चौंक कर उसे देखा। गाड़ी क्यों रोकी? आहाज ने अपनी सीट बेल्ट खोली और उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी दीवानगी और शिद्दत थी। क्या चाहती हो? बिना निकाह के यही स्वागरात मना लूं गाड़ी में? वहाज का जुमला इतना गैर मुतवक्का और भारी था कि पलवशा दंग रह गई। उसकी रोने की आवाज हलक में अटक गई और फटी फटी आंखों से उसे दिखने लगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आवाज लर्ज गई। दुल्हन मली उसे दिखे चली जा रही थी। उसे आज अपनी जूती मंगनी के लिए जो सुर्ख जोड़ा पहना था उस वक्त वहाज की नजरों में उसे मजीद हसीन बना रहा था। क्या हुआ? वहाज ने उसे खुमार आलूद और भारी लहजे में पूछा। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो रहा था। गाड़ी की तंग जगह में उसकी सांस एक दूसरे से टकरा रही थी। मुझसे करोगे निकाह? पलवशा ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या निकाह? वो भी मुझसे? उसे लगा शायद वो कोई ख्वाब दिख रही है या वहाज उसका मजाक उड़ा रहा है। तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? वहाज ने नरमी से उसका ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपनी गर्म गिरफ्त में लिया। उसके लहजे में प्यार का समंदर मौजसन था। मैं डरता था पलवशा, तुम्हारे बचपने से नहीं बल्कि तुम्हें खोने से। हमारे दुश्मन बहुत है और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से किसी तकलीफ में आओ। मैं तुम्हें खुद से दूर रखकर महफूज रखना चाहता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे दूर रहकर ज्यादा गैर महफूज हो। मेरी हिफाजत का हिसार सिर्फ तब मुकम्मल होगा जब तुम मेरी शरीक हयात बनोगी। और आज का इतराफ सुनकर पलवशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट ने वहाज के दिल की दुनिया रोशन कर दी। तो फिर चलो, दादा जान इंतजार कर रहे होंगे। वहाज ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ मोड़ दी। शाहनवाज जिला में सुनाटा छाया हुआ था जो वहाज और पलवशा की वापसी के साथ ही खत्म हो गया। दादाजान सर पर पट्टी बांधे लाउंज में परेशानी से टहल रहे थे। जैसे ही उन्होंने दोनों को सही सलामत देखा, उनकी जान में जान आई। उन्होंने आगे बढ़कर पलवशा को गले लगाया और उसकी पेशानी चूमी। शुक्र है मेरे मालिक का, तुम ठीक तो हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजान। पलवशा ने मुस्कुराते हुए वहाज की तरफ देखा। दादाजान, मौलवी साहब को बुलाए। वहाज ने संजीदगी से कहा। शाहनवाज छाये में चौंक कर वहाज को देखा और फिर पलवशा को। दोनों के चेहरे पर मौजूद रजामंदी देखकर उनका चेहरा खिल उठा। उन्हें समझ आ गई कि उनका ख्वाब पूरा होने वाला है। उसी रात उसी वक्त निकाह का एहतमाम किया गया। कोई हंगामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। सिर्फ घर के करीबी मुलाजमीन और दादाजान की मौजूदगी में वहाज शाह और पलवशा जहांगीर का निकाह हुआ। पलवशा ने वही सुर्ख जोड़ा पहन रखा था और वहाज अपने खून आलूद कपड़े बदलकर एक सादा सफेद शलवार कमीज में मलबूस था। कबूल है। जब पलवशा ने तीसरी बार ये लफ्ज अदा किया तो वहाज ने सुकून का सांस लिया। वो जिद्दी लड़की और मुसीबत अब हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। कमरे में धीमी रोशनी थी। गुलाब के फूलों की महक फिजा में रची हुई थी। ये वहाज का कमरा था जो इन दोनों का मुश्तरका जहां बन चुका था। पलवशा बेड के किनारे बैठी अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि सुबह तक जो सब नामुमकिन लग रहा था वो रात के स्पैर हकीकत बन चुका है। दरवाजा खुलने की आवाज आई और वहाज अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा लॉक किया और आहिस्ता कदमों से चलता उसके पास आया। पलवशा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। वहाज ने उसके करीब बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बढ़ा। तुम वाकई चुड़ैल हो, वहाज ने शरारत से कहा। पलवशा ने फौरन नजरें उठाकर उसे घूरा। और तुम? और मैं इस चुड़ैल का गुलाम। वहाज ने उसकी बात काटते हुए मुकम्मल की। पलवशा हंस पड़ी। वहाज की आंखों में इस वक्त ऐसी मोहब्बत और वारफत की थी कि पलवशा को लगा कि उसमें डूब जाएगी। मैंने तुम्हें बहुत सताया ना? पलवशा ने धीमी आवाज में पूछा। बहुत ज्यादा, इतना कि मेरा दिल चाहता कि तुम्हें उठाकर पूल में फेंक दूं। वहाज ने मुस्कुराते उसकी पेशानी पर बिखरी लट को
کان کے پیچھے کیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر تم نہ ہوئی تو میری زندگی کتنی بے رنگ ہوگی۔ تم میری زندگی کا شور ہو پلوشا، ایسا شور جس کے بغیر مجھے اب سکون نہیں ملتا۔ وہاج نے اسے اپنے قریب کیا۔ پلوشا نے اپنے سر اور اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دھڑکنیں اب صرف اس کے لیے تھی، واپس آتی ان کا نکاح ہو جائے گا۔ پلوشا بے یقینی سے بڑبڑائی۔ وہاج نے اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ہو گیا نکاح، اب تم صرف میری ہو۔ اسے اب مزید قریب کرتا اس کی آنکھوں کے جلتے دیپ دکھنے لگا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اس لمس میں ایک وعدہ تھا، عمر بھر کی حفاظت اور چاہت کا۔ خوش آمدید مائی پیور لو۔ وہاج نے سرگوشی کی اور سے سینے سے لگاتے سکون سے آنکھیں موندی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ نفرت اور ضد کی دھول میں لپٹی ہوئی یہ محبت آخرکار اپنی منزل پہنچ گئی تھی اور اب اسے کوئی دنیا کی طاقت جدا نہیں کر سکتی تھی۔